हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और उस पर बेस्ड कुछ नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को लें और इस कंडक्टिंग प्लेट को आप प्लस क्यू चार्ज देते हैं और इसके नियर बाई जैसे ही कोई दूसरी आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट लाएंगे तो आप देखेंगे कि इधर इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कंडक्टिंग प्लेट्स है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इसके आइडेंटिकल ये भी प्लेट है, कंडक्टिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे and free electrons of the plate will move towards the inner surface of the plate. So on the outer surface positive charge will be produced, but if you connect another identical plate, so free electrons from this plate will move towards this plate. So if plus q charge is on this plate, minus q charge will produce at this plate, and since electrons have come from this plate, so there will be deficiency of electrons, so it will get positively charged and the charge on this plate will become plus. In the same way, if we take another plate, identical plate, again negative and positive charge will be produced, but positive charge will be produced on another plate which is connected to it by a connecting wire. So this plate will get minus q and this plate will get plus q charge. Finally, if we take another identical plate, so it will be inner surface will be negatively charged, outer surface will be positively charged, but if you connect it to the earth, then positive charge will remove, electrons will come from the earth. From earth any amount of charge can be obtained on a conductor. So if this plate has got plus q charge, so it will have minus. Let us assume that C1 is capacitance of this capacitor, C2 is capacitance of this capacitor, and C3 is capacitance of this capacitor. We have to find equivalent capacitance of these three capacitors connected in series. एक चीज इसमें क्या आप देख पा रहे हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। क्या इस पर अगर प्लस क्यू, एक पर प्लस क्यू माइनस क्यू मीन्स इस पर चार्ज क्यू है तो दूसरे पर भी क्यू है, तीसरे पर भी क्यू है। तो हम लोग इसमें एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं नोट टाइप में कि नोट इलेक्ट्रिक चार्ज on each capacitor remains equal. क्या इलेक्ट्रिक चार्ज on each capacitor remains equal which are connected इन सीरीज। मतलब ये है कि सीरीज में कितने भी कैपेसिटर अगर कनेक्टेड हों तो चार्ज जो होगा सभी पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप ये देखिए कि अगर हम ये देखें कि इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1,
और इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 और इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V3। अगर हम इन 3 प्लेट के प्लेस पे कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटर लाना चाहें तो और उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट अस assume an equivalent a capacitor in place of these 3 capacitor whose equivalent capacitance is C. Then equivalent capacitance is C and electric potential difference is V. Then V will be V1 plus V2 plus V3। आप देखें कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, यहाँ पर क्या है V2, यहाँ पर क्या है V3 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पे एक कैपेसिटर लेते, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मान लेते, तो उसके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V will be nothing but V1 plus V2 plus V। और आप जानते हैं कि चार्ज सब पर सेम है तो V1 is nothing but Q by C1, V2 is nothing but Q by C2, V3 is nothing but Q by C3। और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मान रहे हैं तो V will be Q by C। तो ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि अगर कोई सीरीज में 3 कैपेसिटर्स हैं तो their equivalent capacitance will be given by 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C2। This is series combination of capacitors। हम लोग अब करेंगे parallel combination of capacitors। parallel combination of capacitors क्या होगा? यहां पर याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर हम कोई 3 प्लेट्स हैं, let there are 3 plates with capacitance C1, C2 and C3 and let charge Q is provided to these 3 plates, then charge will distribute according to their capacitances. Let plus Q1 charge is distributed on this plate and plus Q2 charge is distributed on this plate Q2 and plus Q3 charge is distributed on this third plate. Now if we take identical plates to these 3 respective plates, इसके आइडेंटिकल मान लीजिए ये आपने लिया, इसके आइडेंटिकल आपने ये ले लिया, इसके आइडेंटिकल आपने ये ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर -Q3 आ जाएगा, यहाँ पर -Q2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -Q1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन तीनों प्लेट्स को
आर्क से कनेक्ट कर दें तो इस पर कितना चार्ज फाइनली आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आ जाएंगे तो इस पर माइनस क्यू1। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव रहा होगा तो यहाँ पर फाइनली जो है क्या आएगा चार्ज, माइनस Q2। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस। तो ये हमने ये दिखाया है कि देयर आर थ्री कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ए पॉइंट का कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो यहाँ पर ये बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किया गया है 0 होगा। तो आप ये देखिए कि इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए और बी के बीच में है। इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए और बी के बीच में है। इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए और बी के बीच में है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor connected in parallel will be same। क्या हम यहाँ लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of each capacitor connected in parallel क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी सेम। तो आप ये देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और अब आप थ्री कैपेसिटर के प्लेस पे अगर इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लें, थ्री कैपेसिटर के प्लेस पे कोई एक लें कैपेसिटर जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, जो कि इनके इक्विवेलेंट, तो यहां पर लेंगे कि लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर इन प्लेस ऑफ these three capacitors such that equivalent capacitance of these three equivalent capacitance of these three कैपेसिटर इज C। मान लेते हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C। तो आप यहां देख सकते हैं कि चार्ज यहां पर आपने Q जो दिया था वो इस पर Q1 गया, इस पर कितना गया Q2, इस पर कितना गया Q3। तो इसका हम यहां पर कर लेते हैं। तो जितना भी टोटल चार्ज है Q विल बी नथिंग बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। What will be Q1? C1 into V, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। What will be Q2? C2 into V. What will be Q3? C3 into V. And if equivalent capacitance is C, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, C into V। तो इससे C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C। ये तो इसका एक डेरिवेशन की भी बात थी और कॉन्सेप्ट की बात थी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं जो आप लोग ट्राई करिए। पहले हम बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, फिर आगे कंपटीशंस कुछ अच्छे किए जाएंगे एससी वर्मा के। Find equivalent capacitance between A and B। पहला कुछ इस तरह से है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये पॉइंट है A, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर
पॉइंट बी है और आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। इसका जो दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैरेड है और प्रैक्टिकल यूनिट जो होगी माइक्रोफैरेड लिखते हैं। 1 माइक्रोफैरेड इक्वल 10⁻⁶ फैरेड, इस तरह से माइक्रोकूलम में है। और ये दिया है 2 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर और होगा, ये अगेन क्या है 3 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड है। फिर से 3 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड और ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। एक तो क्वेश्चन ये दे रहे हैं और दूसरा जो है सेकंड क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो इस तरह से है। ये हमने ले लिया है 3 माइक्रोफैरेड और फिर ये इसको हम ले रहे हैं क्या 3 माइक्रोफैरेड, इस तरह से ले सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड फिर ये ले लें क्या 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर क्या होगा बी पॉइंट। यहाँ पर भी आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। यहाँ पर इसका अगर ऐड करना हो तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों पर चार्ज सेम होगा। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हम यहाँ पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। इन तीनों का जो है चार्ज सेम जाएगा तो ये होंगे किसमें सीरीज, और सीरीज में इनका इक्विवेलेंट 1/c क्या होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो 1/c विल भी क्या होगा c डैश कह सकते हो c डैश, ये हो जाएगा 3/3 यानी 1, इसे c डैश आ जाएगा 1। और जब ये 1 आ जाएगा तो याद रखिएगा कि हम इसको हटा करके इसके प्लेस पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है 1 माइक्रोफैरेड। तो अब ये 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड दोनों किसमें हैं पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो होगा वही इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वे पैरेलल में होंगे। तो और पैरेलल में इक्विवेलेंट c डबल डैश अगर करें तो क्या आएगा c डैश जो आपने निकाला है +2 यानी क्या आ जाएगा 1 + 2 यानी कितना आ गया 3 माइक्रोफैरेड। अब 3 माइक्रोफैरेड तीनों का आ गया तो इसको हम रिप्लेस करते हैं इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर से और वो कितना है 3 माइक्रोफैरेड है। अब आप फिर से देख सकते हैं 3 माइक्रोफैरेड किसमें है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट फिर से कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। और जब ये 1 आ जाएगा तो इसके प्लेस पे फिर से आप 1 ले लेंगे और 1 जब आप इसका लेंगे तो 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर फिर ये रिप्लेस कर सकते हैं और इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा फिर से 3 माइक्रोफैरेड। और जब ये 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा 3 और 3 और 3 किसमें हुए सीरीज में, और सीरीज में फिर से इनका 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। आप फिर रिप्लेस कर दीजिए 1 से, और जैसे ही 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किसमें होंगे पैरेलल में, और पैरेलल में फिर 1 + 2 कितना होगा 3, और इसको जैसे ही आप 3 से रिप्लेस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा क्या 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड किसमें सीरीज में, और सीरीज में 1/3 + 1/3 + 1/3 फिर से इनका 1 माइक्रोफैरेड आएगा। और जब 1 माइक्रोफैरेड आएगा तो इसको रिप्लेस करेंगे फिर 1 माइक्रोफैरेड से, और ये फिर आएंगे पैरेलल में 2 + 1 कितना 3, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे फिर से 3 माइक्रोफैरेड से। और ए बी के क्रॉस अब ये 3 कैपेसिटर और सभी का 3 माइक्रोफैरेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/3 + 1/3 3/3 यानी 1 माइक्रोफैरेड। तो ये तो 1 माइक्रोफैरेड आ गया। यहाँ पर आपको एक जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आप ये देखिए ये प्लेट
फर्स्ट जो कैपेसिटर हमने लिया है इसकी ये प्लेट ए से कनेक्टेड है, और जो सेकेंड कैपेसिटर है उसकी भी एक प्लेट किससे कनेक्टेड है, ए से, और जो थर्ड कैपेसिटर है उसकी भी किससे कनेक्टेड है, ए से। तो ये तीनों हम जो प्लेट्स को यहां इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पॉइंट हो गया क्या। अब आप ये देखिए कि इसकी ये सेकेंड प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की भी सेकेंड प्लेट, और तीसरे की भी सेकेंड प्लेट, ये भी तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पर आ रही हैं। और ये पॉइंट अगर हम थोड़ी देर के लिए डी मान लें और इसको हम सी ले लें, तो ये पॉइंट जो था सी तो अब गायब ही हो गया, ये सीधे सीधे इसमें क्या आ जाएगा, डी पर आ जाएगा। ये तीनों जो कैपेसिटर भी है पैरेलल में, और ये डी पर आ गए, और डी से ही आगे ये क्या है 6 माइक्रोफैरेड, और फिर क्या है ये 6 माइक्रोफैरेड, और ये पॉइंट है बी। आपको ए और बी के बीच निकालना है, और दिया है ये 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। आप देख सकते हैं 2 और 2 और 2 किसमें है, पैरेलल में। तो इनको ऐड करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो C विल बी क्या होगा, C डैश 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरेड। इसका भी इक्विवेलेंट कितना है, 6 माइक्रोफैरेड। इसका भी इक्विवेलेंट कितना है, 6 माइक्रोफैरेड। और ए और बी के बीच अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, और तीनों जो हैं 6 माइक्रोफैरेड के हैं, तीनों जो हैं किसमें, सीरीज में हैं। तो सीरीज में 1/C 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एंड दिस इज 2/6 1/C। तो C हो जाएगा 6/2 3 माइक्रोफैरेड। गलत कर गए, 3/6 कितना होगा, 3/6 होगा। तो ये रेसिप्रोकेट करेंगे 6/3, यानी कितना होगा 2 माइक्रोफैरेड। तो फर्स्ट का आंसर है 1 माइक्रोफैरेड।